Hello, my dear students, I welcome you all. Today we are going to take up a very beautiful poem, The Mosquito, by one of the most influential and one of the most controversial writers of the 20th century, right? Yes, David Herbert Lawrence. Right? The poem is The Mosquito by David Herbert Lawrence. David Herbert Lawrence, D.H. Lawrence, popularly known, right, as a very good writer. He was born in 1885 and he died in 1930. It means that this very man, this very literary genius, he died at a very young age. You got my point? My dear students, this very man had the privilege of writing some novels as well, right? And one of his famous collections right now crosses my mind, birds, beasts, flowers. Exactly. This was a collection by David Herbert Lawrence. Birds, beasts, flowers. And this very poem has been taken from this collection. Apart from many collections, this man had written so many books, right? And he has more than 40 books to his credit, right? After his first major novel, he was a very good novelist, a very good poet, right? A very versatile man, I should say here. Sons and Lovers was his novel, right? A very famous novel. And other major works include Women in Love. Woman in Love. Yes. My dear students, without wasting your time anymore, let us straight away discuss this title here, The Mosquito. Let's throw some light on this collection, Birds, Beasts, Flowers. And इस collection का नाम क्या था? Birds, Beasts, Flowers. ठीक है? तो इस poem को इसी collection से लिया गया है. तो देखा जाए जो collection है, it throws light on the otherness. You got my point? Otherness. ये याद रखना. Otherness of non-human world. Non-human world. ठीक है? यानी हम देखते हैं जो non-human entities हैं apart from human beings, उनकी क्या खासियत है, उनके क्या instincts हैं. ठीक है? Birds, beasts, flowers. I'm talking about this collection. जिसे poem ली गई है. It, we can say, throws light on this otherness, right? Otherness of non-human world, right? And in that very sense, we say that this is actually visualization of the non-human world. Non-human world. ठीक है? Non-human world. तो जाहिर सी बात है, my dear students, in this very poem he talks about helplessness. Exactly, helplessness. ठीक है? Helplessness of human beings, right? So-called powerful human beings, I should say here, before some tiny creatures. ठीक है? Tiny creatures. तो इनमें से इन टाइनी क्रिएचर्स में एक मॉस्किटो भी है. हर एक इंसान को किसी न किसी अंदाज से किसी न किसी वक्त इस मॉस्किटो से सामना हो ही जाता है. तो तब आपको पता है कि ये मॉस्किटो जो है, माय डियर स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज टेक्स अ हैवी टोल ऑन पीपल. ठीक है? यू माइट बी क्वाइट वी कैन से familiar with the fact nowadays we are dealing, right? We are just wrestling with the problem of this COVID-19.
अगर इस वायरस की बात की जाए तो अगर नैनोमीटर को आप डिवाइड करोगे इनटू वी कैन से 1000 टाइम्स तो कितना बचेगा? तो साइज इसका है नहीं, जो वायरस है इतना साइज है। तो आजकल हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? वी हैव बीन रेंडर्ड हेल्पलेस। यू गॉट माई पॉइंट? इतने छोटे वायरस के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं, राइट? एंड सेम कंसर्न हैज बीन वॉइस्ड हियर by David Herbert Lawrence. He says that human beings are no doubt they are powerful, right, on this very planet, but at times they are helpless before some tiny creatures, right? तो एक मच्छर आ जाता है, वो न सिर्फ हमारी नींद को छीन के चला जाता है, बल्कि वो क्या करता है उन टैक्टिक से, ठीक है, वो अजीब अजीब टैक्टिक इस्तेमाल करता है। टैक्टिक्स वो जो इसके स्लाइड ट्रिक्स होते हैं, वो इसकी जो मकारी है, ठीक है, वो इसकी जो डिसेप्शन है, वो उसका जो पावर ऑफ वर्चुअल इनविजिबिलिटी है, हम इसके सामने घुटने टेक देते हैं। It proves great nuisance, and here we can say David Herbert Lawrence is marked by, we can say, changes in his moods, and here is a satiric, we can say, sarcastic tinge in his voice. ये इसको यहाँ पे इस ह्यूमरस पोइम में, हाँ ये तो लाइट हार्टेड डिस्क्रिप्शन है इस मॉस्किटो की, ठीक है, उसको लगता है कि उसने इसको एक ह्यूमरस तरीके से बयान किया है, राइट, टू एक्सप्रेस इट्स हीरोइक, वी कैन से, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजीवर्स, बट एट द सेम टाइम वी से हियर, यानी उसको बयान करने के लिए, इस ह्यूमरस पोइम को बयान करने के लिए, वी फाइंड द पोइट इज जस्ट मॉकिंग द मॉस्किटो, ही इज टॉन्टिंग द मॉस्किटो, right? There is a, so we can say, sarcastic tinge in his voice, sarcastic tinge. तो इन टैक्टिक्स के साथ ये जो डेविड हेर्बर्ट लॉरेंस जो है, जो अपनी, उसको पता है कि किस तरह उस पे जो मच्छर है ये इसका वार करता है, right, my dear students? At times this mosquito, it just lurches sideways, right? At times it makes a wiggle in his ear. This is nuisance. तो आपको पता है कि ये जो मॉस्किटो होता है, जब हम नींद में होते हैं तो अचानक एक बिगुल सा बच जाता है हमारी आंखों, ये कानों के नजदीक, तो फिर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं फिर। लेकिन इसकी जो ये जो टाइनी क्रिएचर है, उसकी डिसेप्शन को देखो, इसकी गेम ऑफ ब्लफ को देखो आप, ये हमें इतना ये झांसा हमें देता है, जो इतनी आसानी से हमारे हाथ ये नहीं लगता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से the mood of the poet here, it gets changed with the passage of time. तो ये जो मूड है, जब उसको ये एड्रेस करता है, ये तरह तरह, यानी उसकी जो कैफियत है वो चेंज होती है। You got my point, my dear students? We see the poet is totally detesting this mosquito here. The poet is at times despising him. You got my point? तो एक और बात है, ये जो बर्ड्स, बीस्ट्स और फ्लावर्स हैं, इस मैंने आपको बोला कि इसमें इसने देखा था कि अदरनेस, यानी these are natural instincts. What do you think? This mosquito, it at times bites people, right? Does it bite people purely out of spite or malice? Not at all. यानी हम कभी कभार देखते हैं कि शायद ये मच्छर हमको काटने के लिए आता है, ठीक है, हमको डंग मारने के लिए आता है, तो शायद ये बाइट इसलिए हमें करता है कि शायद उसको हमारा हसद है, तासुब है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो अदरनेस यहाँ पे है, दिस वाज वन ऑफ द डोमिनेटिंग थीम्स ऑफ दिस कलेक्शन, अदरनेस, विजुअलाइजेशन ऑफ दिस नॉन ह्यूमन वर्ल्ड, एंड इट शोज दिस हेल्पलेसनेस। तो कैसे, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं, ये हमें बाइट इसलिए नहीं करती हैं कि उनको हमारी शरारत होती है, तासुब होता है, ठीक है, गुस्सा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि साइंटिफिकली हम देखते हैं, जब ये हमको बाइट करते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है, तो हमको गुस्सा तो आ जाता है। बट दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस टाइनी क्रिएचर्स, दिस इज अदरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हाउ कैन यू स्टॉप ऑल दैट? यू गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज सर्वाइवल, इस सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभार, तो नॉर्मली अगर साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए, ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट। यू गॉट माय पॉइंट? सो
कहीं ना कहीं जो पावर ऑफ सर्वाइवल उनके लिए है, यहां डंग मारना उनकी फितरत में है। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो इसीलिए उसको यहां पे तरह तरह यानी इसको दर्शाता है कि किस तरह ये जो मच्छर है, किस तरह ये एक न्यूसेंस, एक इनकन्वीनियंस पैदा करता है, ठीक है, एक किस तरह परेशानी में डालता है, ठीक है, एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग को। तो ये अच्छी तरह इसको क्या करता है, उसके सामने घुटने टेक देता है। My dear students, you got my point. Now throwing some light on this the first few we can say stanzas here, तो देखते हैं कि इसमें ये क्या कहता है। Right. Now see. Right. The poem begins with a mocking tune, with this taunting utterance. ठीक है, पहले से ही लगता है कि जो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है ये टॉन्ट करता है, ये मॉक करता है, ठीक है। A bit we can say ironical statement to say something like this: When did you start your tricks, Monsieur? यानी ये जो ट्रिक्स है, ये जो आपकी ये ट्रिक्स हैं, आपकी ये जो डिसेप्शन है, ठीक है, आपकी जो ये ड्यूपिंग है, ये कब से आपने सीखी है, ये कब से आपने शुरू कर दी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, इस मॉस्किटो ने को इसने ऐसे पर्सोनिफाई किया है, ऐसा लगता है कि ये इसके साथ इस तरह पेश आता है जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ पेश आता है। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस मॉस्किटो हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर, पर्सोनिफाइड, ठीक है। Some human qualities have been infused in the mosquito, right? Some details have been projected here, which are typical to human beings. So in that very sense, this is personification. You got my point? आगे और भी devices होंगे, तो इसको क्या कहता है? When did you start your tricks, Monsieur? Monsieur, यानी इसको ये बोलता है कि ये जो ट्रिक्स हैं, आपने कब ये स्टार्ट किए हैं, कब से आपने ये सीखे हैं, कब से आपने ये स्टार्ट किए हैं। Monsieur, Monsieur means Mister, Mister in French, Mister in French. You got my point? यानी ये उसको कहता है कि मिस्टर, आपने कब से ये स्टार्ट किए हैं, ये ट्रिक्स, ये डिसेप्शन, ये आपने कब से स्टार्ट की है। तो मैंने क्या बोला आपको, यहां पे ये जो आयरॉनिक स्टेटमेंट है, यहां पे उसको मॉक करता है, यहां पे उसको टॉन्ट करता है, तो तभी उसको ये मिस्टर कहता है। जैसे हम किसी को आधुनिक जबान में कहते हैं, आइए मिस्टर, आपका जो शिकार है वो हाजिर है, यानी आप उसके शिकार होते हो, आप उसको मिस्टर कह के बुलाते हो, तो आपका जो शिकार है वो हाजिर है। दिस इज टॉन्टिंग, राइट, दिस इज वी कैन से मॉकिंग, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू स्टैंड एंड हाई सच हाई लेग्स फॉर? आपकी ये जो लंबी लंबी टांगे हैं, तो मच्छर की जो लंबी टांगे हैं, ये किसके लिए हैं? Why this length of shredded shank? Shredded means, यहां पे मैं लिखूं shredded means thin, extremely thin, right? Shank means legs. तो आपको पता है ये जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, इसकी ऐसी ऐसी वो लंबी टांगे होती हैं, ठीक है। यू एक्साल्टेशन, अब देखो किस तरह उसको ये एड्रेस करता है। यू एक्साल्टेशन मीन्स एट एन एलिवेटेड प्लेस, एट एन एलिवेटेड पोजीशन, राइट। तो इतनी लंबी टांगे हैं, ये किसके लिए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसको ये कहता है। दिस लेंथ, इतनी लेंथ की, यानी जो आपकी जो लंबी टांगे हैं, इनकी लेंथ किसके लिए है, ठीक है। एग्जैक्टली, इज इट सो दैट यू शैल लिफ्ट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड्स? क्या ये इसलिए है, आपकी ये लंबी लंबी टांगे इसीलिए है कि आप अपना जो वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। किसी भी बॉडी में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो वेट है वो ये जो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सोन वेट बैलेंस। तो इसी तरह ये अपने आप को इसीलिए एलिवेटेड पोजीशन में लेता है मच्छर, ताकि इसका जो
ये जो वेट है ये बैलेंस हो जाए, राइट, एंड वे नो मोर देन एयर, तो इसका जो वजन है इट वुड बिकम नेग्लिजिबल, एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल, ताकि इसका जो वजन है ये हवा से ज्यादा ना हो, राइट, एज यू अलाइट अपॉन मी, तो जब ये इस पे डिसेंड करता है, जब ये इस पे पाउंस ऑन करता है, सो जाहिर सी बात है जब मच्छर डंग मारने के लिए आता है, एक इंसान को पहले नहीं लगता है कि मच्छर ने मुझ पे रेस्ट किया है। यू गॉट माई पॉइंट? यानी इतना इसकी ये देखो, इसकी जो ये टैक्टिक देखो, ये कनिंग टैक्टिक देखो, किस तरह ये अपने आप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस तरह ये वेट को किस तरह ये बैलेंस करता है, तो पाउंस ऑन करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। तो लग नहीं रहा कि उसके ऊपर कुछ है। अब इसको लगता है क्या, इसीलिए स्टैंड अपॉन मी वेटलेस, वेटलेस यानी बिना किसी वजन की मुझ पे आप स्टैंड कर रहे हो, वेटलेस। यू फैंटम, फैंटम, फैंटम इज अ मेटाफर हियर, फैंटम। अब देखो, नाउ दिस मॉस्किटो हैज बीन रिकॉर्डेड एज फैंटम, फैंटम मीन्स भूत, राइट, गोस्ट, एक्चुअली गोस्ट, मंचे सुनन भूत, राइट, राइट, इविल स्पिरिट्स, यू गॉट माय पॉइंट। अब इसको ये गोस्ट कहता है, किसको? आई हर्ड ए वुमन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री, मैंने एक वुमन को, मैंने एक औरत को ये सुना, ये सुनते हुए, ये कहते हुए सुना है, विंग्ड विक्ट्री, विंग्ड विक्ट्री, दिस इज एल्यूजन, विंग्ड विक्ट्री, विंग्ड विक्ट्री, विंग्ड विक्ट्री इज एक्चुअली ए स्टैचू, राइट, स्टैचू, ये एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ नाइकी, ये जो माइथोलॉजी है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ए स्टैचू ऑफ नाइकी, ठीक है। यानी मैंने एक वुमन को ये कहते हुए सुना है, दिस इज रेफर टू विक्ट्री ऑफ सेमेथ्रेस, ए स्टैचू ऑफ नाइकी, राइट। तो एक मिथ है, दिस इज बेसिकली अ ग्रीक स्टैचू, ग्रीक माइथोलॉजी में हम इसको, यू गॉट माय पॉइंट, विंग्ड विक्ट्री, विंग्ड विक्ट्री, स्टैचू ऑफ नाइकी। तो ये माइथोलॉजी में क्या है, यानी हम बोलते हैं इसको स्टैचू, दिस इज एक्चुअली एल्यूजन, एक्चुअली एल्यूजन आपको पता है, हम लेटर ऑन को डिस्कस करेंगे, दिस इज अ पासिंग रेफरेंस, राइट, ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एग्जैक्टली। इन sluggish Venice, sluggish means what? Sluggish Venice, Venice आपको पता है, इट्स एन इटालियन सिटी, इटालियन, ठीक है, वेनिस इटली का एक शहर है, राइट। sluggish, sluggish means idle, idle and lazy, ठीक है, lazy, you got my point। डल, डल यानी डल वेनिस में मैंने उसको ये कहते हुए सुना है। एक वुमन आपको कह रही थी विंग्ड विक्ट्री, यानी आपको वो एल्यूड कर रही थी इस स्टैचू ऑफ नाइकी के साथ, ठीक है। ये कहते हैं, किसको कह रही थी? मॉस्किटो को, ठीक है। यू टर्न योर हेड टुवर्ड्स योर टेल एंड स्माइल, तो आप अपना जो सर है आप उसको टेल की तरह कर रहे हो, टेल की ओर कर रहे हो, एंड स्माइल, और हंसते हो। हाउ कैन यू पुट सो मच डिविलरी इनटू दैट ट्रांसलूसेंट फैंटम श्रेड, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतनी शरारत, इतनी मिस्चीव इस छोटी, इस ट्रांसलूसेंट बॉडी में करोगे। ट्रांसलूसेंट, आपको पता है जो ट्रांसलूसेंट सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट, आपको पता है वी आर ट्रांसपेरेंट, वी हैव ट्रांसलूसेंट, वी हैव ओपेक। तो ट्रांसलूसेंट सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी थोड़े थिन होते हैं, राइट, ये लाइट को पास ऑन अलाउ करते हैं, राइट, टू पास थ्रू देम। तो जाहिर सी बात है ये इसको अब ट्रांसलूसेंट इसलिए कहता है कि ये इतना थिन है, इसकी थिन बॉडी है मॉस्किटो की। तो अब ये कहता है कि इतनी जो डिविलरी है, यानी कितना मिसचीफ है, इतनी शरारत, तो आप लोगों पे भारी पड़ते हो। ये जो शरारत है, जो मिसचीफ है,
मिसचीफ, शरारत, राइट, यू गॉट माई पॉइंट। इतनी शैतानी आप में कैसे आ गई, यानी इतनी शैतानी आप इतनी सी इस ट्रांसल्यूसेंट बॉडी में, राइट। फैंटम श्रेड, फैंटम मीन्स गोस्ट, श्रेड लाइक ए सेड, श्रेड मीन्स थिन, एक्सट्रीमली थिन। तो इस ट्रांसल्यूसेंट बॉडी में, राइट, आप इतनी डिवलरी कैसे इन्फ्यूज करते हो, ठीक है। ऑफ ए फ्रेल कॉर्पस, फैंटम श्रेड ऑफ ए फ्रेल कॉर्पस। फ्रेल मीन्स व्हाट? फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर। कॉर्पस मीन्स बॉडी, राइट। कॉर्पस मीन्स बॉडी। ये वो कॉर्पस नहीं है, ठीक है, उसको हम डेड बॉडी कहते हैं, नहीं। कॉर्पस मीन्स बॉडी हियर। वो कॉर्पस आगे लार्ज साक्सन की है, कॉर्पस बॉडी, राइट। क्वीर with your thin wings and your streaming legs. Queer means strange, unusual, bizarre. यानी कितना अजीब है ये। With your thin wings, आपकी जो thin wings हैं, and your streaming legs, आपकी ये streaming legs हैं, ये आपकी जो floating legs हैं, जब float से कर रही legs इस पर तीसरा शीम नीचे, तीसरा शीम thin, ये तो float कर रहे हैं। How you sail like a heron, आप तो ऐसे लगते हैं जैसे आप सेल, आप इस तरह से सेल करते हो, आप इस तरह से तैरते हो, किस तरह? जिस तरह एक हिरन है। हिरन आपको पता है, नाउ द मॉस्किटो हैज बीन कंपेयर्ड टू हेरन, हिरन, राइट। हिरन आपको पता है, इसकी भी लंबी टोंगे होती है, हिरन। मॉस्किटो को, यानी इसकी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हैं, इसकी जो ये इंट्रिकेट मूवमेंट्स, बड़े कॉम्प्लेक्स मूवमेंट से करता है, बाय वर्च्यू ऑफ दीज स्ट्रीमिंग लेग्स, बाय वर्च्यू ऑफ दीज फ्लोटिंग लेग्स, एंड दैट्स व्हाई द पोएट हैज कंपेयर्ड मॉस्किटो टू ए हिरन। हिरन आपको पता है क्या है? हिरन ए वाटर बर्ड, वाटर बर्ड आसन, वाटर बर्ड, इट वाज अ लॉन्ग लेगेड, इसकी लंबी टांगे होती है, एंड लॉन्ग नेकेड एज वेल, और इसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है। तो अब इसको ये बाय वर्च्यू ऑफ दिस सिमिली हियर इट हैज बीन कंपेयर्ड टू हिरन, यानी ऐसे ये वाटर बर्ड शॉसन जो आपस में जिस पर वेट करन, ठीक है, जब ये वेट करता है तो बहुत तेजी के साथ करता है, तो इस तरह से इसकी मूवमेंट को कंपेयर किया है हिरन के साथ, ठीक है। ए वाटर बर्ड, लॉन्ग लेगेड, लॉन्ग नेकेड एज वेल, और ए डल क्लॉट ऑफ एयर एंड नथिंगनेस। या तो आप क्या हो? डल क्लॉट ऑफ एयर, डल क्लॉट एक्चुअली क्लॉट से मॉसस, डल क्लॉट ऑफ एयर, राइट। डल क्लॉट ऑफ एयर आपको पता है, अगर ये डिल्ला है, इसको हम डिल्ला कहते हैं, क्योंकि क्लॉट ऐसे डल क्लॉट ऑफ एयर, इट वेज नथिंग, यानी अगर हवास में ऐसे क्लॉट एयर तुम सो अति कह कि महसूस कर, सो एक्जैक्टली रेफर कर दैट यू सिग्निफाई एक्चुअली नथिंग, योर वेट इज नेग्लिजिबल, राइट। दैट्स व्हाई द पोएट जस्ट सेज दैट द मॉस्किटो इज ए डल क्लॉट ऑफ एयर। डल क्लॉट मीन्स मॉस, ठीक है, मॉस, एंड सिग्निफाइज नथिंग, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको महसूस भी नहीं कर सकते हो, यानी इतनी, यानी डल क्लॉट ऑफ एयर उसको ये कहता है आप, एंड नथिंगनेस, यानी जो कुछ नहीं है, एंड नथिंगनेस। नाउ सी द मूड ऑफ द पोएट, सी द टोन ऑफ द वॉइस हियर। द पोएट एक्चुअली वांट्स टू trivialize the mosquito. Now he wants to just belittle the importance of mosquito here, and belittle the, we can say, morphology. I should say, because you are science students. Here the poet actually belittles the morphology of, right, the overall structure of this mosquito. यानी आप तो कुछ नहीं हो,
मगर छु करन काम छु इत पड़न करनावन इते पड़न शख्स रस कोशर पड़न छु वन एक शख्स खोर टेंडेंट पर थावनावन यम सन पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स. So this is here actually helplessness of human beings. No doubt we just kill mosquitoes at the end, but that is not the case. They just execute their plans, right? They are just able to manipulate their tricks in a very convincing manner. हम उनको मारते हैं लेकिन वो और बात है, right? We just outsmart them in the end. हम उनको outsmart तो करते हैं लेकिन वो और बात है. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्पलेसनेस जो है, जो बेबसी लोगों की है इन मच्छरों के सामने, उसको बयान किया गया है डेविड हेरबर्ट लॉरेंस के द्वारा. कल इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक्स.